अस्सलाम वालेकुम डियर। लास्ट वीडियो में हमने 11th केमिस्ट्री चैप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम की एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम 11th केमिस्ट्री की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मींट बाय द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो डियर, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए डायनामिक स्टेट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of the reverse reaction and the concentration of reactants and products remain constant over time. Next is define reversible reaction. Give an example. So there, a reversible reaction is a chemical reaction that can proceed in both the forward and reverse directions simultaneously. बैक वक्त forward और reverse reaction चल रहे होते हैं लेकिन opposite direction में. Reactants form products and the products can also react to reform the original reactant. एग्जाम्पल इसकी है दी हैबर प्रोसेस फॉर अमोनिया सिंथेसिस, यानी कि ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज द चेंज ऑफ वॉल्यूम डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर सम ऑफ द गैस फेज रिएक्शंस बट नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देयर यस, वॉल्यूम चेंज इफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यू टू ले चैटलिट्स प्रिंसिपल, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और Kp remain unchanged as it depends only on temperature. Next is mention the characteristics of chemical equilibrium. So their characteristics of chemical equilibrium include it is a dynamic state, reactions continue in both direction, rate of the forward reactions equal the rate of the reverse reaction, concentration of reactants and products remain constant but not necessarily equal. It can be approached from either direction starting with reactants or product. Next E question हमारे पास है position of equilibrium which is dynamic in nature and not static. Explain it. So there, a reversible reaction at equilibrium is dynamic because forward and reverse reactions continue at equal rates. दोनों रिएक्शंस इक्वल रेट पे चल रहे होते हैं। वाइल कंसंट्रेशन अपीयर्स कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। मॉलिक्यूल्स आर स्टिल कंटिन्यूसली इंटरकन्वर्टिंग। इट्स ए स्टेट ऑफ एक्टिव बैलेंस नॉट ए स्टॉप। लगता यूं ही है कि रिएक्शन रुक गया लेकिन रुकता नहीं है, दोनों रिएक्शन चल रहे होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई डू द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन व्हेन ए रिवर्सिबल रिएक्शन अप्रोचेस द इक्विलिब्रियम स्टेज। देयर एज ए रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, the concentration of reactant decreases. Since the rate of reaction is generally proportional to the concentration of reactant, the forward reaction, which depends on the concentration of reactant, slow down as their concentration diminish. Next is why ice at 0 degree centigrade can be melted by applying pressure without supply of heat from outside. So there, applying pressure to ice favor the formation of liquid water because water occupies a smaller volume than ice at 0 degree centigrade. Ice is less dense. According to Le-Chatelier principle, the equilibrium, ice देखो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में और वाटर अगेन कन्वर्ट हो रही है आइस में, शिफ्ट टू द लिक्विड साइड lowering the melting points below 0 degree centigrade and causing ice to melt. Next question हमारे पास है H. Write two conditions of equilibrium constant. So their temperature must be constant and the system must be at equilibrium. The temperature must be constant. The value of the equilibrium constant Kc or Kp is specific for particular reaction at a given temperature. Any change in temperature will alter the value of the equilibrium constant. And system must be at equilibrium. The equilibrium constant is defined only when the reaction has reached the state of chemical equilibrium, meaning the rates of forward and reverse reactions are equal and concentrations are constant. नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, एक उसने दिया हुआ यहाँ पे 2SO2 प्लस O2 मिलके क्या बना रहे हैं, 2SO3 बना रहे हैं। हैज़ कम टू इक्विलिब्रियम इन वेसल्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर बिफोर द रिएक्शन बिगन। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स वर कितनी थी, 0.06 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ SO2 एंड 0.05 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर किसकी थी, O2 की। आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज रीच द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 जो है वाज 0.040 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपने बतानी है। तो डेयर, बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि 2 मोल्स ऑफ SO2 एंड 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ SO3। यहाँ पे देखें 2 मोल्स SO2 के हैं और 1 मोल O2 के हैं, ये मिलके 2 मोल्स बना रहे हैं SO3 के। सो फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स SO3 कंज्यूम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर इफ 0.04
मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ SO3 इज फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। O2 यूज्ड कितनी हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.04, ये 0.02 हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2 कितनी हो जाएगी फिर 0.03 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो फाइनल आंसर यही है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2 कितनी हो जाएगी 0.03 जो है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो डियर ये थे चैप्टर 8 11th केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।